सगळे फोकस करत आहेत. NGO आले, तुमचा पण लेबर आहे, पण ह्याच्या पलीकडे कोळीवाडा जो आहे आणि ह्याच्या पलीकडे जो पोर्शन आहे म्हणजे नवोटेल आणि त्या तिकडे पण स्टाफ लावलाय ना. म्हणजे अख्खा बीचच्या 12 वाजेपर्यंत क्लिअर होऊन 12 वाजे. Is concerned is that Mumbai Municipal Corporation is coming out with 6 STPs. You know what is an STP? It's a sewage treatment plant. So what a sewage treatment plant does is all the muck and all the sewage that flows in from the various nallas and gets discharged into the ocean. Till now it gets discharged directly into the ocean without getting treated. So BMC is setting up 6 STPs or sewage treatment plants at 6 different locations so that all the nalas and all the sewage that flows and comes in, before entering the ocean, it gets treated first. So it will first get treated and then it will get discharged into the ocean so that we will protect our marine environment. Also we have put up nets at around 7 to 8 locations which stops all the floating and the trash. You go and see the nalla there. There's a lot of trash, a lot of kachra, and a lot of floating plastic. So what the nets do is that they let only the water flow into the ocean. So it stops all the trash, the floating, the plastic, the kachra, which gets lifted up from there, and only the water goes into the ocean. And if you would have come here around 2, 3, 4 years back, during monsoon, as the monsoon starts in the month of June and the ocean gets wild, the ocean throws a lot of trash onto the shore. So basically what we throw into the ocean via the nallas, the ocean throws it back at us. But in the last 2 to 3 years, what we have observed is the amount of trash that comes onto the shore during monsoon specifically has reduced by more than 50%. By more than 50% because of these nets which are put up at the mouth of the nala where the nala enters the ocean. I think your school also should organize a visit for if your teachers are here. The teachers are here. There is one Juhu Irla pumping station and there is one Gazdar pumping station. If you go and have a look at those 2 pumping stations, so they have installed screens over there, and what these screens do, all the nalas flow into the pumping station, and from the pumping station it goes into the ocean. So those screens which are installed at the pumping station, they stop and arrest all the floating trash and the garbage from that point and let only the water enter into the ocean. So now the next level is going to be STP, which is going to treat the water and then discharge into the ocean. So we are doing a lot to protect our marine environment, and I don't know how many of you all read Times of India. So if you read Times of India, maybe a year back there was a picture of the Juhu beach in Times of India, and the tagline below that was, "Is this Juhu beach?" So it was as clean, as spick and span as any other international beach. So a lot of the population of the city is 1.5 crores. And the amount of garbage that we generate daily is around 7,500 metric tons on a daily basis. Earlier it was 10,000 metric tons. So you know why we have reduced by 2,500 metric tons? Anyone? Any guesses? Sorry? Because of disposable plants. Disposable? Plants.
disposal plants. Okay. Any other guesses? Okay. The reason is that 3 to 4 years back, the BMC started an अभियान में आप शरीक हुए हैं और यहाँ पे बीच क्लीनिंग का पूरा मुहिम चालू है। आप यहाँ पे आए हैं सपोर्ट करने, क्या करें? मैं सबसे पहले तो मुंबई महानगर पालिका का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं और उनको अभिनंदन भी देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से पिछले 2 घंटों में ये बीच क्लीन किया है और यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स और एनजीओज भी आए हैं मुंबई महानगर पालिका का हाथ बटाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि विसर्जन खत्म होने के 3 घंटे में अभी भी एक मूर्ति वहां पर विसर्जित होने जा रही है। तो मैं ऐसा कहूंगा कि विसर्जन अभी भी शुरू है, लेकिन विसर्जन खत्म होने के 3 घंटे के अंदर इस बीच को जैसे वो कल था उसी स्टेट में लेकर आना, ये एक बहुत ही सैल्यूट के लायक एक चीज़ है। और ये मुंबई महानगर पालिका और यहाँ पर आए हुए सारे एनजीओज जो है, एसोसिएशन ऑफ सोशल बियॉन्ड बाउंड्रीज, और यहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस जो आए हैं, उनका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। और क्या लगता है आप अब जो युवा है वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और जल्द से जल्द ये सब चीज़ें क्लीन करते हैं ताकि हमारा जो क्लाइमेट है, आज के युवाओं में अपने पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा सजगता जो है वो देखने मिलती है। और बचपन से स्कूल से ही उन्हें एनवायरनमेंट के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्कूल के बच्चे जो है अपने टीचर्स के साथ में एज अ पार्ट ऑफ स्टडी टूर यहाँ पर आए हुए हैं ताकि हम अपने पर्यावरण की रक्षा कैसे करें और जो अपना जो पर्यावरण है और ख़ास करके हमारा जो मरीन एनवायरनमेंट जो है, उस मरीन एनवायरनमेंट को किस प्रकार से हम प्रोटेक्ट करें, कॉन्जर्व करें, प्रिजर्व करें, उस दृष्टिकोण से आज के युवाओं में बहुत ज़्यादा जो है वो एंथुजियाज्म देखने मिल रहा है। और क्या लगता है पिछले कुछ सालों में जिस तरह से विसर्जन किया जाता है गणपति मूर्तियों का, उसमें काफ़ी फेरबदल आया है जिससे बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अब छोटी छोटी जो मूर्तियाँ हैं आसपास के इलाकों में डिवाइड जाती है और बड़ी मूर्तियाँ आती है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा तो छोटी मूर्तियाँ हैं, वो आजकल छोटी मूर्तियाँ जो है वो क्ले की बनती है, शाडू की बनती है, और वो एक इको फ्रेंडली मटेरियल होता है, उससे पोल्यूशन नहीं होता है। तो बहुत बड़े पैमाने पर छोटी मूर्तियाँ शाडू की बनती है, क्ले की बनती है। और मुंबई महानगर पालिका की तरफ से बहुत सारे जगहों पर आर्टिफिशियल पॉन्ड्स का आयोजन किया जाता है, जिस आर्टिफिशियल पॉन्ड्स में वहाँ के आजू बाजू के रहने वाले लोग आकर विसर्जन करते हैं ताकि हमारे समुद्र के ऊपर, बीच के ऊपर जो पहले लोड होता था, आज से 5 साल पहले जो लोड होता था, वो आज लोड यहाँ पर हमें देखने नहीं मिलता है। तो वो भी मुंबई महानगर पालिका ने लिया हुआ एक पॉजिटिव इस दिशा में कदम है, ऐसा मैं मानता हूँ। कल मोदी जी का बर्थडे था, कुछ कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन हम सभी लोग सेवा दिन करके मनाते हैं और 17 सितंबर मोदी जी के बर्थडे से लेकर गांधी जी के बर्थडे तक 2 अक्टूबर तक ये जो पखवाड़ा है वो सेवा पखवाड़ा करके हम मनाते हैं। और इसमें इन 15 दिनों में अलग अलग प्रकार के जो सेवा के प्रकल्प है, ब्लड डोनेशन हो, मेडिकल कैंप्स हो, इस प्रकार के क्लीनिंग ड्राइव्स हो, उसको हम अंडरटेक करते हैं। और बहुत बड़े पैमाने पर पूरे मुंबई में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश भर में इस प्रकार के सेवा कार्य चलते हैं। थैंक यू सर। पीछे और किस तरह से आप जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कर दीजिए खुद, उसके बाद आप। हेलो, गुड मॉर्निंग। आई एम सुश्वेता तिवारी। मैं एक एक्टर हूँ और मॉडल हूँ, और यहाँ पे मुझे इनवाइट किया है नरेंद्र हिरानी जी ने, एंड बहुत अच्छा देख के लग रहा है सबने साथ में कितने अच्छे से बीच को क्लीन किया है। अभी गणपति बप्पा कल वापस चले गए और ऑब्वियसली हम वापस वेट करेंगे कि वो आए, लेकिन बिकॉज ऑफ ऑल दिस विसर्जन इतना डस्ट जमा हो जाता है, जो फूल गिराते हैं लोग बीच पे, तो आई थिंक क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये अकेले नहीं होता है किसी से। आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव, जहाँ सब मिल के सारा जमा करके कैसे लेके जा रहे हैं वापस, एंड हाउ दिस बीच लुक्स वेरी क्लीन राइट नाउ। अभी और भी हमें करना है सो दैट इट लुक्स क्लीनर, बट आई एम श्योर बहुत अच्छा सक्सेसफुल एक्सपीरियंस हो रहा है मेरे लिए। तो फर्स्ट टाइम है फॉर अ बीच ड्राइव इनिशिएटिव एंड आई एम सुपर हैप्पी, एंड बहुत अच्छा लग रहा है इस ड्राइव के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और आखिर में क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पे जो युवा लोग ज़्यादा है, ये यंगस्टर्स ज़्यादा है, क्या कहेंगे जो लोग ज़्यादातर सपोर्ट कर रहे हैं बीच क्लीनअप में? हाँ, तो आई एम सो सरप्राइज कि दिस यूथ इज सपोर्टिंग दिस। ऑनेस्टली मैं भी मुंबई से हूँ, बट
कॉलेज के टाइम पे, उसके बाद भी कभी मौका नहीं मिला है टू बी अ पार्ट ऑफ सच ड्राइव्स एंड समझने के लिए कि साफ़ सफाई से ही इंडिया मुंबई अच्छी लगेगी। एंड बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के कि यंगस्टर्स आके कितने अच्छे से बीच साफ कर रहे हैं एंड कितने मेहनत कर रहे हैं सुबह से उठ के अर्ली मॉर्निंग से, तो छोटी बात नहीं है, राइट। एंड थैंक यू सो मच। चौपाटी पे आना यहाँ पर आई है, सम्मिलित हुई है और साफ सफाई अभियान में जुड़ी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं देख के हैरान हूँ कि हमारे देश की जनता, मेरे मुंबई की जनता, मेरे मुंबई के बच्चे इतने एक्टिव हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं और वो बिस्तर छोड़ के आए हैं और बाकायदा पूरे फ्रेश होके आए हैं, सिर्फ वो एक अच्छा काम करने के लिए। पहले सबसे बड़ी बात तो ये मैसेज जाता है कि हमारे देश के लिए कि भाई हमारी अब जो युवा है एक्चुअली वो अब भारत को संभालने के लिए तैयार है, हमारे मुंबई को संभालने के लिए तैयार है, हमारे पर्यावरण को संभालने के लिए तैयार है। कल न जाने कितने लाखों के तादाद में यहाँ पे गणेश विसर्जन हुआ है, लेकिन मैं अब अपनी आंखों से देख पा रही हूँ कि भाई एक तिनका भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो ये जो तभी पॉसिबल हुआ है जब ये बच्चों ने आके, कॉलेज के बच्चों को कहा जाता है कि इनको फुर्सत कहाँ है, लेकिन मैं आज ये बोलती हूँ कि इन्होंने उन सब लोगों को गलत साबित कर दिया है कि देखिए फुर्सत ही फुर्सत है। सुबह के 5 बजे बच्चे अपने मम्मी पापा को बाय बाय बोल के, बहुत सारे बच्चे तो फैमिली के साथ आए हैं। तो मैं ये बोलती हूँ इससे कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि हमारी यूथ जो है सही डायरेक्शन में जा रही है। और मैं यहाँ पे जितने भी फाउंडेशंस हैं उन लोगों ने जो ये जो एफर्ट्स लिया है, इनिशिएटिव लिया है हमारे भारत के लिए, हमारे मुंबई के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि अभी कुछ घंटे बाद 3-4 घंटे बाद लोग यहाँ पर आएंगे। अब मैं जब यहाँ पर आई हूँ मैंने देखा इतना साफ सुथरा वातावरण देख के महसूस ही नहीं हुआ कि कल यहाँ पे गणेश विसर्जन हुआ था। तो वैसे ही जो लोग जुहू बीच को एक घूमने का एरिया समझते हैं, वो जब आएंगे तो उनको भी वही लगेगा। तो मैं ये बोलती हूँ कि ये मुझे ऐसा लगता है कोई भी इंसान, कोई भी देश तभी सफल हो सकता है जब एक एक इंसान कदम उठाए, एक एक इंसान अपने घर से निकले, एक एक इंसान हमारी सरकार के साथ, हमारे जो ये NGOs जो कदम उठाते हैं भारत को अच्छा बनाने के लिए, देश को अच्छा बनाने के लिए, शहर को अच्छा बनाने के लिए, मोहल्ले को अच्छा बनाने के लिए, ये तभी पॉसिबल है जब एक इंसान दूसरे इंसान से हाथ मिला के बोलता है कि चल भाई मैं भी तेरे साथ हूँ। इट डजंट मैटर रात के 9 बज रहे या सुबह के 6 बज रहे हैं। तो आज ये देखने के लिए मिला है और इन बच्चों ने मुझे मोटिवेट किया है कि मैडम हिमा शर्मा जी आप थोड़ी सी लेट है, हम आपसे एक कदम आगे हैं। में आप कुछ बोलना चाहेंगी आपके NGO के बारे में? आप भी कुछ बोलिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पर आई हूँ। अगर ये मुझे यहाँ नहीं बुलाती तो मुझे ये इतना खूबसूरत पल जो आज मैंने देखा है, मैंने भी अपने कैमरे में कैप्चर किया है। हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये जो विसर्जन के बाद जो इतना बीच गंदा होता है, पूरे यंगस्टर और इन पूरे मुंबईकर और यंगस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये जुहू बीच को क्लीन करना, नेक्स्ट डे वापस पुराना जुहू बीच बनाना, ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और प्लीज़ आइए और जुहू बीच क्लीन करने में हमारी हेल्प कीजिए। एंड आई एम फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ सोशल बियॉन्ड बाउंड्रीज, ये हमारा NGO है। पिछले 8 साल से हम ये काम कर रहे हैं जुहू बीच क्लीन करने का, एनवायरनमेंट को क्लीन रखने का, वातावरण को क्लीन रखने का, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो प्लीज़ जॉइन अस फॉर दिस बीच क्लीन अप ड्राइव, साफ समुंदर पार। थैंक यू सो मच।